दिस वीडियो वॉज एक्चुअली फॉर लियो क्लब ऑफ बॉम्बे अपटाउन, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आई डू अ फोटोग्राफी वर्कशॉप फॉर देम। सो उसके लिए मैंने ये वीडियो शूट किया था। सो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट पुट इट ऑन यूट्यूब एज वेल। तो दैट्स व्हाई इट्स हियर। काफी चीजें आपने पहले सुनी होगी मेरे फर्स्ट वाले वीडियो में, बट बहुत सारी चीजें इसमें मैंने नई और अच्छी तरीके से डाली है। तो एंजॉय एंड स्टोरी टेलिंग। व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? It is an activity, or let's say an art form, of conveying a story. It can be written like books. It can be audible like audiobooks. It can be visual like cinematography and filmmaking. Then what is photography? The book definition says it is the art of taking and processing photos. But what I believe is it's no different than storytelling, but with just one frame. A good photograph always conveys a message, a story. So those who cannot read or understand can still get the message that you are trying to give. Just a bit about myself, who am I and what I do. So my name is Shrey and I'm a photographer, filmmaker, artist, and sometimes I do some magic. So I started my journey of photography almost 5 years back. 5,000 का एक फोन था मेरे पास. So I started shooting with that phone and people started admiring and liking what I was shooting and I was doing with the camera. तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आते गया about composition and lighting and everything, तो उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड के कैमरा से फोटोज लेना स्टार्ट किया. जैसे कैमरा की क्वालिटी इंप्रूव हुई वैसे ही मेरी फोटोग्राफी की क्वालिटी भी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होने लगी, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फोन एंड अ कैमरा. बट it's wrong, it's completely wrong to think you cannot become a good photographer by just using a phone. A good photo needs a good eye, not a good camera. I mean, obviously it requires a good camera, कि अगर अच्छा कैमरा होगा तो क्वालिटी अच्छी आएगी, नो क्वेश्चंस ऑन दैट. बट आपके पास एक कैमरा नहीं है या फिर आपके पास अच्छा फोन नहीं है, ये सोच के आप फोटोज नहीं ले रहे हैं, तो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. आई हैव फ्रेंड्स जो अभी भी फोन से ही शूट करते हैं एंड दे आर फिनोमिनल. आई हैव अ DSLR, आई हैव एन एक्शन कैमरा, आई हैव अ 360 कैमरा, बट मैं वो सब यूज नहीं करता हूँ. मोस्टली मैं सारे अपने फोटोज फोन में ही लेता हूँ until and unless it's a professional shoot या फिर आई एम डूइंग समथिंग दैट रिक्वायर्स अ कैमरा. तो गुड फोटोग्राफ needs a good vision. So that's how I started my journey and I made my way up and I became who I am right now. I won't say I am a great photographer or I am a really good photographer. I take photos, people like it, people admire it, and I enjoy doing that. So that's how I started, and then I came to Canada and got admission in Seneca College. वहाँ पे I was studying interactive media design, जहाँ पे we had a course called Introduction to Photography. First semester, I learned that course. It wasn't like really learning because I had a really good experience with camera and photography, but it was a fun course because our professor was really good. So after seeing my work in the first semester, my professor hired me to assist him during his lectures. तो जब मैं अपने second semester में आया, तब से मैं अपने सारे juniors को photography सिखा रहा था in class in Seneca College. तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था उसी कॉलेज में मैं पढ़ा भी रहा था. So I have little bit of experience in teaching as well. So going back to what I said earlier, कि how a good photo always conveys a message. It's not always about message. If it's a portrait of a person, it doesn't give a message really, right? But what I'm talking about is a good overall photograph. तो अगर आप कहीं बाहर गए हो and you take lots of photos with your friends, family, and you come back from the trip, तो उसके बाद आप जब photos देखते हो तो you relive the memories. So that's why you like the photos. But if you show them to anybody else जो वो ट्रिप पे नहीं था या फिर जो आपको पर्सनली नहीं जानता है, they'll be like, yeah, good photos, nice photos,
बट उनको ना उस फोटोज में इंटरेस्ट नहीं आएगा. वाई? बिकॉज यू हैव द फीलिंग्स कनेक्टेड विद दोज फोटोज. एंड ऑनेस्टली जो लोग आपको नहीं जानते उन्हें वो फोटोज देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा या फिर कोई मजा नहीं आएगा. बिकॉज इट्स नॉट टेलिंग अ गुड स्टोरी. इफ इट्स अ गुड पोर्ट्रेट, it has good composition, good angle, good lighting, then everybody will be like, yeah, that's a nice photo. That's not just about the memory, that's about the photograph that you shot. So for example, I was just doing a photo walk. I had my camera on, so I'm always ready to take the photo. Us time pe a couple was walking down the street. They were holding hands and it was like really beautiful to see them. तो I took a photo of them and then I waited for a bit. उसी टाइम पे दूसरी साइड से दूसरा एक कपल आ रहा था and I got the perfect timing कि जब मैंने ये शॉट लिया I instantly felt like this is a really good photo. I don't always feel that for the photos that I take, and this is one of my all-time favorite photo that I've shot. You see how old couple and the young couple, they have the same pose, like they're walking, they're holding hands, and even their footsteps are matching. It gives a really beautiful message about life. So let's talk about how you can improve your photography. I won't be able to go too deep into it because वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट आई विल गिव यू सम बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स विच यू कैन यूज टू इम्प्रूव योर फोटोज. But if you are really interested in photography and cinematography, filmmaking and stuff, so consider subscribing to my YouTube channel because I recently started it and why not? So do check that out. So I'm going to talk about 3 things which makes a good photo: angle, lighting and timing. ये 3 चीज अगर आपने ठीक से सीख ली then all you need is experience. तो let's talk about angles. एंगल एक ऐसी चीज है जो आप फोटो खींचने के बाद चेंज नहीं कर सकते हो. एक बार आपने फोटो खींच लिया तो बस फोटो आ गया. उसके बाद you can change colors, lighting and almost everything but not angle. So this is one of the most important and critical part of photography. Let's talk about angles for portrait shots. So whenever you are taking portraits, always take it from eye level. आप जिसकी भी फोटो खींच रहे हो उसके आई लेवल पे जाके फोटो खींचो. इफ आई एम टेकिंग फोटो ऑफ दिस, आई नो इट्स नॉट अ पर्सन की जिसकी मैं पोर्ट्रेट फोटो खींचूंगा, बट कंसिडर दिस एज अ मॉडल. दिस इज जस्ट टू शो यू. तो डोंट शूट इट फ्रॉम हियर, गो डाउन, गो टू देयर आई लेवल की जहाँ पे कैमरा एंड आपके मॉडल की आंखें एक लाइन में हो. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है अबाउट पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स. अनटिल एंड अनलेस यू हैव समथिंग इन माइंड कि जो आपको शूट करना है, कि इफ यू वांट टॉप एंगल या फिर इफ यू वांट लोअर एंगल, तो यू शुड गो फॉर दैट. बट इफ यू डोंट नो कि कहाँ से फोटो खींचनी है तो ऑलवेज टेक इट फ्रॉम देयर आई लेवल. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि व्हेनेवर यू आर शूटिंग, फोन या कैमरा कुछ भी यूज करे उसे ना एक ऐसे एंगल पे मत रखो. ऑलवेज कीप इट स्ट्रेट and then shoot the photo. This is the thing that I use in almost 99% of my photos. ऐसे या फिर ऐसे रखना, that's not ideal and that is the best tip that I could give. One more thing कि don't be lazy. फोटो आप जहाँ हो वहां से फोटो खींचना छोड़ दो कि मैं यहाँ पे हूँ, कोई बोल रहा है कि फोटो खींच दे, बस यहाँ से फोटो खींच दे. डोंट डू दैट. अगर उठना पड़े उठो, दूर जाना पड़े जाओ, यहाँ से वहां चल के जाना पड़े जाओ. Do whatever it takes, but don't be lazy. मैंने ये फोटो ली थी एक डक की and I just took it for the sake of it कि हाँ फोटो आ गई. But then I was like कि नहीं, मुझे अच्छी फोटो लेनी है. तो then I went down and मैंने lower angle से उसकी फोटो ली and see the difference. Same with my dog कि ये normal फोटो है जो मैंने बस ऐसे खींचने के लिए खींची थी and just not being lazy मैंने ये फोटो खींची and यू कैन सी द डिफरेंस कि पहले वाली फोटो और इस वाली फोटो में कितना ज्यादा डिफरेंस है. जस्ट क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें थॉट लगाया एंड मैंने इसके पीछे थोड़ी सी मेहनत की कि मैं अपनी जगह से हिल के कहीं और गया, मैंने एंगल थोड़ा लो किया एंड उसके बाद मैंने फोटो खींची. इफ यू ट्राई टू बिकम अ लिटिल बिट क्रिएटिव, उससे आपकी फोटो यहाँ से यहाँ पहुंच सकती है. ट्राई समथिंग डिफरेंट, ट्राई समथिंग न्यू. आप कोई एक जगह पे गए हो, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, नायग्रा फॉल्स, वॉट एवर इट इज, वहां पे 1000 लोग फोटो खींच रहे हो, आप भी वहीं से फोटो खींचोगे तो मे बी आपके कैमरा की क्वालिटी अच्छी होगी या फिर आपने लाइटिंग और सब अच्छे से सेट किया होगा. तो 2-4 माइनर चीजों को छोड़ के आपके और उनकी फोटो में कोई डिफरेंस नहीं होगा. सी वॉट अदर पीपल आर डूइंग एंड don't do that. Try something creative कि सब लोग यहाँ से फोटो खींच रहे, should I go left, should I go right, should I take it from the top, should I take it from the bottom, कहाँ से फोटो लूं जिससे मेरी फोटो और बाकी 1000 लोगों की फोटो
डिफरेंट हो जाए, जगह सेम रहे बट फोटो अलग हो जाए. दैट्स व्हाट यू शुड थिंक अबाउट कि हाउ टू स्टैंड आउट. क्योंकि वेन एवर आई गो ऑन अ ट्रिप विथ माई फ्रेंड्स और फैमिली, वापस आने के बाद ऑलवेज ये डिस्कशन होता है कि यार सेम जगह पे गए थे, हमारी और तेरी फोटो में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे है, कि तेरी फोटो इतनी ज्यादा अच्छी कैसे है और हमारी क्यों नहीं. I have put thought into it. When others were just taking photos to put story on Instagram कि मैं यहाँ पे गया हूँ या फिर मैं यहाँ पे गई हूँ, I have put thought कि this is what everybody is doing. मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है. ऐसे करने पे बहुत सारी बार मेरी फोटो खराब भी आई है, but that's how I have learned and that's how I became the photographer that I am. एक्सपीरियंस के साथ ही ये चीज सीख सकते हो. तो always shoot and always try कि how can I become creative and how can I take this shot differently, what angle should I go for. Have you ever thought कि हमें drone shots इतने ज्यादा पसंद क्यों आते हैं? Because that's the angle जो लोग usually नहीं देखते हैं. That's why we like that. That's the same thing for all the photos कि आपकी फोटो का एंगल थोड़ा भी डिफरेंट होगा, it will instantly gain people's attention. Why? Because that's different. ये लोगों ने नहीं देखा. So that's composition. And जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले composition के लिए एक ट्रिक बताई थी कि take the photo from your model's eye level and keep the phone or camera straight. Try it right now and see the difference yourself. And if it works, do let me know. My Instagram is linked below. So that was angles. Now number 2, lighting. Lighting plays a crucial role in photography. अगर आपकी फोटो अंडर एक्सपोज्ड है, मतलब आपकी फोटो में इनफ लाइट नहीं है, तो पहली चीज कि आपकी फोटो ठीक से लोग देख नहीं पाएंगे. दूसरी चीज, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसमें नॉइस होगा. एंड अगर फोटो ओवर एक्सपोज्ड है तो जो हाईलाइट वाले पार्ट्स है उसमें कोई भी डिटेल्स नहीं होगी, वो चीजें आप देख ही नहीं पाओगे. दैट्स जस्ट गोना बी अ ब्राइट स्पॉट. लेट मी शो यू हाउ इम्पोर्टेंट लाइटिंग इज. नाउ लुक व्हाट हैपेंस. Now I just have these 2 fill lights. Now look at this. See, this is too bright. It's just white bright spots. You cannot see the details over here. See, मैंने थोड़ी लाइट ब्राइट की and background डार्क हो गया. See, lighting creates a big difference. Now you will be like कि हमारे पास studio lights नहीं है. Even I don't have studio lights. This is not studio light, but yeah, this works. You don't need to have a studio light or you don't need to buy a studio light. मैंने 5 साल की फोटोग्राफी के बाद इनमें इन्वेस्ट किया है and it's not a big investment. So you don't have to buy a studio light. अगर आपको घर में अंदर रूम में अच्छी फोटो नहीं मिल रही है, विंडो के पास जाके खड़े हो जाओ. विंडो के पास जो नेचुरल लाइट आती है, that's really good for any kind of photos. If you are shooting a model, ask them to go and stand next to a window. That solves the problem. या फिर if you are shooting a product, go stand next to a window. क्योंकि बाहर से जो नेचुरल सनलाइट आती है वो बहुत ज्यादा सही होती है फोटोज के लिए. One more good lighting condition इज गोल्डन आवर. जब सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है तब एक हल्की हल्की गोल्डन कलर की लाइट आती है. दैट इज द बेस्ट टाइम टू शूट एनी काइंड ऑफ फोटोज. इफ यू डोंट नो व्हेन इज गोल्डन आवर, तो जस्ट आस्क गूगल, आस्क सीरी एंड दे विल टेल यू कि इस टाइम पे गोल्डन आवर है एंड यू कैन शूट ड्यूरिंग दैट टाइम. सो दैट्स प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट लाइटिंग. लाइक नॉट रियली, but that's the most I could explain right now in this video. Number 3, टाइमिंग. टाइमिंग इज जस्ट बेसिकली टेकिंग द फोटो ऑन द राइट मोमेंट. कोई भी चीज दूसरी बार क्रिएट नहीं हो सकती. यू कैन नॉट रिक्रिएट द मोमेंट. आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप सेम मॉडल, सेम कैमरा, सेम सेटिंग, सब कुछ सेम रखोगे, फिर भी यू विल नॉट बी एबल टू कैप्चर द सेम फोटो अगेन. अगर आप कोई जगह पे गए हो एंड इफ यू शॉट द फोटो, आई बेट कि आप वो जगह पे 1 महीने बाद जाओगे तो आप सेम फोटो ले पाओगे. आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. तो and I honestly think this is my strong part कि I am good at capturing photos on time. अगर मैं कहीं पे गया कि जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं बस एक कोना पकड़ के वहाँ पे अपना कैमरा लेके बैठ जाऊंगा विथ अ 70-200 लेंस, मतलब जूम वाला एक लेंस लेके मैं साइड पे कहीं बैठ जाऊंगा एंड आई टेक सम नेचुरल फोटोज. वो मोमेंट्स ना रिक्रिएट नहीं होती. टाइमिंग इज रियली 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 इम्पोर्टेंट. तो एज आई सेड कि एंगल, लाइटिंग एंड टाइमिंग, these are the 3 things which makes a good photo, and everything is equally important. You need to find a fine balance between all of 3 in order to get a good photo. Sometimes you have to compromise one just to get the other 2 right, but you'll get this with practice and experience. Photography is something that nobody can teach you. You have to learn it yourself.
दिस इज नॉट समथिंग कि जिसकी मैं थियरी बताऊंगा एंड यू विल बी लाइक कि हाँ ये मुझे आ गया एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक गुड फोटोज. नो डाउट यू विल बी एबल टू टेक गुड फोटोज, बट कुछ चीजें एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होती है. तो जस्ट गो आउट एंड स्टार्ट शूटिंग. एंड I just want to give you one more. It's not even a tip. This is just 3.5. It is color grading. Editing and color grading भी बहुत important role play करती है. आपकी फोटो कैसी दिखेगी उसमें. अपनी जो mistakes होती है वो पोस्ट में correct कर सकते हो. Like editing can also make a huge difference. This photo, for example, this photo used to look like this. It's just about editing. If you want to tell good stories through your photos, go out on the street and start taking photos of whatever is happening. जो भी हो रहा है उसकी फोटोज खींचो. Street photography is really good and it really helps कि जिससे आपकी फोटोग्राफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही होती है बाहर, उसमें से आप कुछ चीजें अच्छे से कैप्चर कर पाओगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज स्टोरी टेलिंग एंड हाउ यू कैन डू दैट थ्रू योर फोटोज. आई हैव डन दैट, सो ट्रस्ट मी. आई वॉज हॉरिबल कि जब मैंने कैमरा लिया था तो आई वॉज हॉरिबल फोटोग्राफर. आई डोंट इवन वांट टू सी माई फोटोज. इस टाइम पे ना मुझे लगता है कि कितनी गंदी फोटोज खींचता था मैं, बट उसी गंदी फोटोज की वजह से आई हैव बिकम व्हाट आई एम राइट नाउ. ये एक्सपीरियंस की बात है. यू लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस. मैं सिर्फ अभी बता सकता हूँ कि दिस इज व्हाट यू कैन डू. वो ठीक से नहीं कर पाओगे until you have tried and you failed. Try to shoot, and when you shoot it doesn't work out, troubleshoot. I hope you liked it and you enjoyed it. अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो do let me know. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना. इस वाली वीडियो में कोई ब्लूपर्स नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जैसे मैंने पहले बताया इट वॉज फॉर लियो क्लब ऑफ बॉम्बे अपटाउन. देखते हैं अपन ऐसे कुछ ना कुछ तो वैसे करते ही रहते हैं. मैं स्पेसिफिकली फोटोग्राफी के सिवा कुछ चीजों के बारे में वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ. तो आई डोंट नो, जस्ट स्टिक अराउंड एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. सो बाय बाय एंड पीस आउट.